ہم ابھی بھی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو لگام دیں جو لوگ شعار اسلام صحابہ اکرام کی تعظیم نہیں کرتے اور ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ اس ملک میں جو پاکستان ہے امن والا ملک ہے، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے شام کا معاملہ ہوا ہے، عراق کا ہوا ہے، اسی طرح اس ملک کا بھی حال ہو جائے گا۔ خادم جمعیت اہل حدیث سندھ کے معروف خطیب حافظ ارشد علی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ معزز علماء اکرام اور سامعین عظام، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے مخاطب جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آج کے لوگ زیادہ ہیں۔ بلکہ یہ مجھے کہنے دیں کہ عوام الناس کی بجائے حکمران اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبر جو ہیں وہ اس کے زیادہ مخاطب ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے بدلے میں تبدیل کر دیا؟ یہاں نعمت اللہ اسلام اور اسلام کے شاعر ہیں، ان کو آج مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے قوانین جتنے بھی بنے ہیں ملک کے، ان سب میں شعائر اسلام موجود ہیں۔ ان کو پڑھے گا کون؟ ان کو سمجھے گا کون؟ بڑی خوشی ہوئی اس وقت کہ جب گورنر پنجاب نے سب کالجوں میں قرآن مجید کو باترجمہ پڑھنا لازم قرار دے دیا۔ کاش کہ اگر یہ جملہ یہ کہہ دیا جاتا کہ جو بھی قومی اسمبلی کا ممبر بنے گا وہ مکمل ترجمہ پڑھ کے آئے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہے کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار قومی اسمبلی میں ہی ایک بات چل رہی تھی کہ عورت کی دیت آدھی کیوں ہے اور مرد کی دیت پوری کیوں ہے۔ عورتوں نے شور مچا دیا کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر یہ آدھی دیت کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ محاسن اسلام کو یہ عورتیں نہیں جانتی۔ اگر یہ ترجمہ قرآن پڑھ کے آتی تو یقیناً یہ محاسن اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہاں اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلک کے بزرگ، انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ آپ نہیں سمجھی اس بات کو کہ اسلام نے عورت کی دیت کیوں آدھی رکھی ہے اور مرد کی دیت پوری کیوں رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کو مار دے، اس کی آدھی دیت کس کو ملے گی؟ اس کے شوہر کو۔ اور اگر کسی مرد کو کوئی قتل کر دے تو اس کی پوری دیت عورت کو ملے گی۔ آدھی دیت کس کو مل رہی ہے؟ عورتوں بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ یہ دین کا فہم ہونا چاہیے۔ آج حدود آرڈیننس موجود ہیں، لیکن پھر بھی
न जाने इस मुल्क के वजीर आजम क्यों खुद साख्ता सजाओं की तरफ ज़हन जाता है। अगर कोई रेप का मसला सामने आता है, कहते हैं उसकी मर्दाना कुव्वत खत्म कर दो, इसके लिए हदूद ऑर्डिनेंस मौजूद नहीं। उसकी सजा क्या है? सारी सजाएं मौजूद हैं, लेकिन उस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। पढ़ के आए तो फिर है, इस्लाम पढ़ा ही नहीं, इस्लाम के शिआर के बारे में पता ही नहीं, और मुसलमानों की क़ियादत कर रहे हैं। यह लाजम करना चाहिए। शुक्र है कि मुशर्रफ ने थोड़ी सी एक पाबंदी लगाई थी कि कम से कम FA और BA हो, उससे भी थोड़ा बहुत शऊर आ जाता है। लेकिन बिल्कुल अगर कोई अंगूठा टेक हो, उसको दीन की क्या समझ है? वो सबसे ज्यादा दीन का मजाक उड़ाएगा। शायद 70 सालों में इतना दीन का मजाक नहीं उड़ाया गया जितना इन 2 सालों में उड़ाया गया है। इसमें कादियानी दंदनाते फिर रहे हैं, और उन पाक हस्तियों में जो सहाबाए किराम हैं, उन पर कुफर के फतवे इस दौर में लगे हैं। और वो सहाबाए किराम जो जिनका अमल, जिनका मनहज, बाद में आने वाले लोग अगर उस मनहज को अपनाएंगे, जन्नती लोग हैं। जब आपने फरमाया कि यहूदियों के 71 फिरके, ईसाइयों के 72 फिरके, मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, एक गिरोह जन्नत में जाएगा। सहाबाए किराम ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी हमें 72 से सरोकार नहीं है, जिस घर जाना ही नहीं उसका ड्रेस क्यों पूछे? हमें बताएं कि जन्नत में जाने वाले गिरोह की क्या निशानी है। आपने फरमाया, मा अना अलैहिल यौम व सहाबी, आज जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबाए किराम हैं, वो जन्नत में जाने वाला गिरोह है। आप देखें, माना अलैहि व सहाबी पर कौन है? क्या वो लोग जिनकी अजान अलग, जिनका कलमा अलग, जिनकी सेरी और अफ्तारी अलग, जिनका पूरा दीन अलग, हत्ता के ना उनका वुजू वो वुजू नहीं है जो दीन ने दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में जा रहे थे, पानी नहीं था, अचानक पानी मिला तो सहाबाए किराम ने सोचा कि नमाज जा रही है। सफ़े अव्वल के वो नमाजी थे, जल्दी जल्दी वुजू किया, पांव खुश्क रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, फरमाया कि वैलुल लिल अकाब मिनन नार, उन एड़ियों के लिए हलाकत और बर्बादी है जो एड़ियां खुश्क हैं। आप जानते हैं कि कल क़यामत के दिन जो मुकम्मल वुजू करेंगे, पूरे वुजू के आधार चमक रहे होंगे, लेकिन एक गिरोह मुसलमानों का ऐसा है जो चेहरा भी धोता है, बाजू भी धोता है, मसा भी करता है, लेकिन पांव नहीं धोता। अगर सहाबा की एड़ियां खुश्क रह जाएं, उनके लिए जहन्नम की वैल है, और अगर कोई पांव ना धोए सारी जिंदगी, उनके लिए क्या है? वो तो मुकम्मल जहन्नमी है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबाए किराम के लिए वैल का लफ्ज बोला, वो सहाबाए किराम जो सबसे अफजल तरीन है इस उम्मत के। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। वो बेहतरीन लोग अगर वैल जहन्नम की उनके लिए हो सकती है, वईद उनके लिए हो सकती है, जबकि उन्होंने अपना इज़ाला कर लिया था, अपनी गलती का इज़ाला कर लिया था, लेकिन जो सारी जिंदगी वुजू में पांव खुश्क रखें, मसा करते रहें, क्या उनके लिए क्या है? आप इन चीजों से देख लें, ये लोग दीन पर अमल करने वाले नहीं, बस इनकी जुबानों पर इन पाकबाज हस्तियों के बारे में कुफर के फतवे दे देकर और काला ज़हन, काले दिल और काले लिबास पहनकर
इसी तरीके से अगर दुनिया से चले गए, यकीनन ये लोग जन्नत के हकदार नहीं, क्योंकि जन्नत में तो अल्लाह ताला ईमान वालों को जमा करेगा, और ईमान और कुफर जो है एक दिल में जमा नहीं हो सकता। या तो ईमान सहाबा से मोहब्बत का ईमान जो है दिल में होगा, या फिर कुफर होगा दिल में, सहाबा का बुग़्ज़ होगा। ईमान और कुफर और निफाक एक साथ दिल में जमा नहीं हो सकते। लिहाजा जो लोग दिल के स्याह हैं, पूरा दिल स्याह हो चुका है, वो इस तरह की बातें करके जो है वो मुसलमानों के जज्बात को भड़का रहे हैं, और ये काबिल मजम्मत है। हम अभी भी हुकूमत से कहते हैं कि आप इन लोगों को लगाम दें जो लोग शियारे इस्लाम सहाबा इकराम की ताज़ीम नहीं करते और उन पर कुफर के फतवे लगाते हैं। वरना जो है वो इस मुल्क में जो पाकिस्तान है अमन वाला मुल्क है, वरना ये मुल्क जो है वो उसी तरीके से जैसे शाम का मामला हुआ है, इराक का हुआ है, इसी तरह इस मुल्क का भी हाल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।